Good morning everyone. Again welcome in the class. So today is the second class of this chapter, that is light, shadow and reflection. So now in previous class already studied till the beam of light. So today we have to study the first topic, that rectilinear propagation of light. So here rectilinear property of light. Very simple to understand that rectilinear means straight. Very simple. Propagation means movement, and light means, I think you understand very well already. It means अगर light का movement straight path पे होता है, then it is called what? Rectilinear propagation of light. Very simple. The definition is what? As we know that light always moves on the straight path. That's why this properties of the light is known as rectilinear propagation of light. So right here, as we know that light always travel in a straight path, and this property is said to be the rectilinear propagation. Properties नहीं यहाँ propagation. Okay, so rectilinear propagation of light. Okay, rectilinear propagation of light means what? The straight movement of light. It means जब कभी भी हम जानते हैं already light always moves in a straight path. That's why it is called the rectilinear propagation of light. Now second one topic, you have to understand that transparent object. What did you mean about the transparent object? दुनिया में कोई भी ऐसा सामान जो कि लाइट को खुद से पास करने का अलाउमेंट देता है, जैसे हम ऐसे करें तो लाइट अगर यहाँ पड़ेगा तो लाइट आर पार नहीं जा सकती. इट्स नॉट पॉसिबल टू गो, बिकॉज ये बहुत लेयर मोटा है और ये ओपेक ऑब्जेक्ट, ये अलाउ नहीं करता, हमारा बॉडी अलाउ नहीं करता कि लाइट हमको आर पार कर जाए. बट सम ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल ग्लास, एक ऐसा ऑब्जेक्ट, एक ऐसा सामान, एक ऐसा मटेरियल, एक ऐसा सब्सटेंस जो कि ये मूवमेंट के लिए, इस लाइट के मूवमेंट के लिए अलाउ करता है कि मेरे होकर के आप जाओ. दिस इज कॉल्ड द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. सो यू कैन राइट डाउन एन ऑब्जेक्ट that allow to pass the light through them is said to be transparent object. For example, number one example, glass, water. ग्लास को देखो, शीशा का अगर बात करें, ग्लास में क्या होता है? शीशा. आप जब कार से ट्रेवल नहीं करते हो, बस से ट्रेवल करते हो, किसी भी फोर व्हीलर से या बस से कहीं जा रहे हो, देखते ड्राइवर के सामने जो शीशा लगा वो ट्रांसपेरेंट होता है, बिकॉज ये रिक्वायरमेंट होती है आदमी को कि हम सामने देख पाए, और लाइट हमको पता है कि उस ग्लास से आर पार जा सकता है. दैट्स व्हाई we are able to see the object whatever present in front of you, and it is easy to ride. अगर आप ड्राइवर हो और आपको अगर आगे ही ना दिखे, बहुत मुश्किल हो सकती है. That's why एक ऐसा ग्लास में लगाया जाता है जो ग्लास अलाउ करता है लाइट को पास करने का. So glass is the example of transparent object, and water is also example of transparent. Polythene also, polythene जो हम लोग सब्जी खरीदते हैं, सामान खरीद के लाते हैं, व्हाइट पॉलीथीन होता है, वो क्या होता है? आर पार दिखता है, बिकॉज लाइट कैन ट्रेवल
through the polythene, through the water, through the glass. That's why it is called the transparent object. Make clear? Next, that is opaque object. What is the meaning of opaque object? It's a very meaningful topic given here because it is very requirement, very necessary to understand the transparent, opaque and translucent. So I think transparent object is clear. So we have to understand now what? Opaque object. Opaque object. Transparent object allowed to pass the light, but opaque object does not. कोई भी opaque object किसी भी कंडीशन में लाइट को आर पार जाने नहीं देता, वो अलाउ नहीं करता. फॉर एग्जाम्पल वॉल, ये जो दीवार है, बोर्ड है, लाइट यहाँ जल रहा है, इसके बाद वाले कमरे में इसका लाइट उधर नहीं जा सकता है, खास करके किस होगा, भले ही साइड से चला जाए, बट ऐसे नहीं है, बिकॉज this board is not going to be allowed to pass the light through it. That's why it is a opaque object. Our body is the opaque object. Wall, wood, iron. So number of things opaque. It means what is the definition? An object that does not allow to pass the light through it. वो खुद से वो जाने ही नहीं देता, पास ही नहीं कर देता. Is said to be what? Opaque object. Clear? Third number that given also translucent object. अब है कि तीसरा कैसे जाए? ट्रांसपेरेंट, वेरी क्लियर दैट ट्रांसपेरेंट इज व्हाट? तो ट्रांसपेरेंट पास करने देता है, ओपेक पास नहीं करने देता है, तो ट्रांसलूसेंट क्या करेंगे? सॉरी, एग्जांपल आल्सो यू कैन राइट हियर वुड, वॉल, इट इज. सो यू हैव टू राइट डाउन हियर ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट. ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट. How to understand the translucent object? अब ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या करता है? एक ऐसा ऑब्जेक्ट, दुनिया में बहुत सारी चीजें, तो ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि लाइट को पास तो करने देता है, बट ये बहुत दूर तक लाइट इसके होकर के नहीं जाती. या फिर आप समझ सकते हैं कुछ लाइट जाएगा और कुछ लाइट नहीं जाएगा, बिकॉज इसमें कुछ ऐसा बीच में लगा होता है, या फिर कह सकते हैं इसका एक नेचर है कि ये अलाउ नहीं करता. इट मीन थ्रू द ट्रांसलूसेंट एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि अलाउ तो करता है, बट लाइट कैन नॉट ट्रेवल फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू द ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट. इट मीन an object through which light can travel. Light travel कर सकता है, travel, but not for long distance. ये बहुत दूर तक ट्रैवल नहीं कर सकता है. It means you can say also some light can pass and some are not through the translucent object. Through the translucent object, some light, some amount of light can pass and some cannot. Okay? It means कुछ लाइट पास करेगा और कुछ नहीं करेगा. एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल के लिए बटर पेपर. जब एक पेपर को बटर लगा दिया जाए तो उसे कुछ लाइट पास करता है और कुछ लाइट पास नहीं करता. सेकेंड, फोटोक्रोमिक ग्लास. अब फोटोक्रोमिक ग्लास क्या होता है? अभी ग्लास मैंने बताया, ग्लास इज ट्रांसपेरेंट, बट हियर फोटोक्रोमिक ग्लास इज ट्रांसलूसेंट बिकॉज इसमें लाइट पूरी तरह से क्रॉस नहीं कर पाता है. एग्जाम्पल गॉगल्स. आप जानते हैं गॉगल, वो बड़ा बड़ा चश्मा आजकल
नहीं आप लोग लगाते हो पक्का, आप लोग लगाते होंगे कुछ लोग, और मे भी आपके घर में कोई बड़े भाई होंगे या फिर पापा होंगे तो डेफिनेटली लगाते गॉगल्स। तो उसमें क्या होता है कि लाइट पूरी तरह से क्रॉस नहीं कर पाएगा, और जब लाइट पूरी तरह से क्रॉस नहीं कर पाएगा तो आंख तक, आपकी आंखों के पास तक पूरी तरह से लाइट पहुंच नहीं पाता। जब पूरी तरह से लाइट पहुंच नहीं पाता है तो आंख गर्म नहीं होता और आंखों को ठंडा रहने में मदद मिलती है, और ये गर्मी गिरने में ज्यादा लोग यूज करते हैं। सो फोटोक्रोमिक ग्लास इज व्हाट? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। सो राइट ऑन दिस, देन वी विल गो द टॉपिक shadow. Light topic is going to be stopped here. Then related with light we have to understand now shadow. So I am going to rub this board. Now the topic is going to be start, that is shadow. So you have to understand shadow today. Shadow. अब shadow क्या है? Shadow क्या होता है? एक ऐसा ब्लैक कलर का कुछ भी ऐसा प्रतिमा जिसको हम लोग बोल सकते हैं पिक्चर, जो कि आपके पीछे बनता है, उसको शैडो कहते हैं। शैडो के कुछ सामान की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ चीजें जो जरूरी सामान होती है वो आपको चाहिए होता है, जो कि हम लोग शैडो के यूज करते हैं। तो शैडो में हम लोगों को 3 चीजों की जरूरत होती है। नंबर 1, शैडो के लिए जो 3 चीज जरूरत होती है, तो सबसे पहला जो जरूरी चीज होता है वो होता है सोर्स ऑफ लाइट। सेकेंड थिंग दैट an opaque object, and third thing that screen। अब कैसे होगा पहले इसको समझ लेते हैं, फिर हम इसकी पूछना शुरू करेंगे। फर्स्ट यू हैव रिक्वायर्ड ए स्क्रीन। दिस इज कॉल्ड व्हाट? ए स्क्रीन। स्क्रीन इज व्हाट? कर सकते हो वॉल या कोई भी कुछ भी है, स्क्रीन ले सकते हो। सेकेंड थिंग यू हैव रिक्वायर्ड हियर अ सोर्स ऑफ लाइट। सपोज यहाँ पे एक टॉर्च ले लेते हैं जो कि ऐसे लाइट निकल रहा है। Okay, it means you have required 3 things to form shadow. Number 1, source of light. Number 2, screen. And number 3, opaque object. Just opaque object means क्या? मैंने तुरंत बताया। opaque object means क्या? जो कि लाइट को पास करने नहीं देता। It means क्या है ये? opaque object। कुछ भी ऐसा स्टोन या कोई भी उनका टुकड़ा कुछ भी ऐसे लिख सकते हैं, ए पार्ट ऑफ वुड, कोई भी लकड़ी का एक पार्ट नहीं डाल दिया। नाउ होगा क्या? लाइट यहां से आके इसको टकराएगा, यहां से आके यहां टकराए, ये नहीं करते हैं सपोज। बट ये क्या होगा? इन सब लाइट को ये रोक दिया। ये क्या किया? रोक दिया क्योंकि लाइट यहां से क्रॉस नहीं करता। अब यहां से इलेक्ट्रिक बैक चला जाता है। बट इस चीज का शैडो, एक ब्लैक कलर का शैडो, मेरे पीछे एक शैडो फॉर्म होगा ऐसे। क्यों? क्योंकि लाइट जो यहां से यहां आना चाहिए तो वो आ नहीं रहा। इसके पीछे कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट के सामने एक साइड अगर लाइट को पाथ को ब्लॉक करता है, उसके पीछे वाला भाग अंधेरा हो जाता है, और इसी काले अंधेरे भाग को क्या कहते हैं? शैडो कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल है, जैसे ही मैंने किसी वुडन पार्ट को पाथ ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट के बीच में मैंने रख दिया, लाइट को स्टॉप किया, और इसका पिछला भाग यानी कि मान लो ये भाग तो लाइट इस पे पड़ रहा है, निश्चित तौर पे दिख रहा हो, पर इस भाग में तो लाइट पड़ा नहीं। अब ये ब्लैक कलर का शो होगा इस स्क्रीन। ओके, दिस इज कॉल्ड द शैडो। ओके, so write down, if an opaque object stops, if an opaque object stops the path of light, जैसे ही लाइट के पाथ को ब्लॉक करता है, रोकता है, then the shadow is formed on the screen, which is
ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट के जस्ट पीछे रखा होता है जो स्क्रीन, उस पे काला कलर का, ब्लैक कलर का कुछ ऐसा पिक्चर टाइप बन जाएगा, सेम शेप का कुछ ऐसा बनेगा जो कि शैडो है। इट मींस शैडो कैसे फॉर्म होगा? एन ऑब्जेक्ट, एन ओपेक ऑब्जेक्ट जो लाइट क्रॉस करने ना दे, बिकॉज जब ट्रांसपेरेंट यहाँ लगा देंगे, ट्रांसल्यूसेंट लगा देंगे तो फिर शैडो नहीं होगा, क्योंकि लाइट क्रॉस कर जाएगा, तो ये सबको लाइट देगा, शैडो नहीं होगा। तो यू हैव टू टेक ओपेक ऑब्जेक्ट. Opaque object stop the path of the light, and then shadow is formed on the screen which is behind the object. So you have to three things required. First one is screen, opaque object and source of light. इसमें कुछ चीज और है. Shape of the shadow कैसे हम डिसाइड करेंगे? shape बड़ा होगा, छोटा होगा, कि बहुत बड़ा होगा, कि बहुत छोटा होगा. So let me write out here. So we have to understand the how to decide the shape of the shadow. Shadow का shape कैसे डिसाइड? किस चीज पे डिपेंड करता है? Shape of the shadow किस चीज पे डिपेंड करता है? डिपेंडेंसी किस पे है? नंबर 1, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. It means if you take big object, big opaque object to stop the light, definitely the shadow is not bigger. But जैसे ही छोटा लगेगा, छोटा बनेगा, simple. But one more important thing is that कि आप देखो ये स्क्रीन है, यहाँ पे लाइट था, आप ऑब्जेक्ट को यहाँ रखोगे, ओके? डेफिनेटली इसका जो शैडो बनेगा बहुत बड़ा बनेगा. बट सेकेंड थिंग, जैसे ही आप ये समझ लो यहां तक हो गया इसका, और वन मोर स्क्रीन अगेन, हियर इज द ओपेक ऑब्जेक्ट एंड हियर इज द सोर्स ऑफ लाइट. देन डेफिनेटली इसका शैडो छोटा सा. तो डिपेंड किसी से किया? डिस्टेंस बिटवीन द ओपेक ऑब्जेक्ट एंड सोर्स ऑफ लाइट. ये डिपेंडेंसी नहीं होती. Distance between opaque object and source of light. अब इसमें कैसे डिपेंड करेगा? अगर इसमें दो केस है. इफ डिस्टेंस बिटवीन object and light is small, छोटा होगा, then क्या होगा? साइज बहुत बड़ा होगा. इट मीन्स शैडो फॉर्म bigger and bigger. But second thing, that is when it means if distance between object and light is large, ज्यादा डिस्टेंस हो गया, इट मीन्स स्क्रीन की तरफ आता है, देन शैडो इज फॉर्म स्मॉल. So I think you already understand the shadow and how to depend on the distance or size of the objects. Thank you everyone for it. You have to see this video. If you have any doubts, you may ask separately. Thank you.